Welcome everyone to today evening's Value Talk. With me is Jitendra Chaudhary, who is also a business partner with Olive Green Consultants. Jitendra is a SEBI registered investment advisor, MFI qualified, IRDA certified. In addition, he has done his qualified financial planning from the Reliance Academy for goal-based investment planning. We'll today be discussing about sovereign gold bonds and we'll discuss sovereign gold bonds in detail in all aspects. And Jitendra will be providing us the expert advice on that. Welcome, Jitendra. Pleasure being here. Excellent. So let's, since the topic is wide, let's straight dive into it. My first question, basic. Who issues the sovereign gold bond? These sovereign gold bonds are issued by RBI on behalf of Government of India. So they take care of the entire process, issuance, and other guidelines. So RBI is the main body which takes care of the issuance and further due diligences for these sovereign gold bonds. Okay. So RBI is the issuing agency, right, on behalf of Government of India. Yes, and these bonds are backed by central government. So the principal payment and interest is being backed by government. Which provides the investor the cushion that in case if anything goes wrong, then central government would come in and pay the principal as well as the interest. So it is a central government bond wherein it is issued by RBI because RBI is the government's own bank. Right. Right. How frequently are usually the sovereign gold bonds issued, Jiten? Is it monthly, 6 monthly? What it is like? So there's no fixed frequency. So generally, it has been observed that they come in multiple tranches, and generally every 3 to 4 months. So जैसे अभी जो लास्ट वाला था वो अगस्त में एंड हुआ था, so उसके बाद से अभी तक कोई और इशुएंस नहीं हुई है. So as and when the government of India requires money, this is one way of accumulating money from the public in the form of these bonds. So जो ट्रेंड देखा गया पिछले 4-5 साल में, मल्टीपल ट्रेंचेस आते हैं, 2-3 महीने के अंतराल में आते हैं हर साल. Okay. So usually say once a quarter, would that be a fair guess? Twice a quarter also might possible, depends on how much money does the RBI is looking at to accumulate from the market. तो क्वार्टर में 2 बार भी हो सकता है, साल में 4 बार भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ हो सकता है, 1 महीने में 2 बार भी इशू हो जाए. तो ऐसा कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं है, बट जनरली देखा यह गया कि साल में 2-3 महीने के गैप के बीच में इशुएंस होती है, मतलब ट्रेंचेस आते रहते हैं. Okay. And is there a minimum investment around it कि इतना आपको करना ही पड़ेगा? And is there a maximum ceiling also कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकते? देखिए, जो इन गोल्ड बॉन्ड्स की जो डिनोमिनेशन है वो यूनिट्स में होती है, और 1 यूनिट 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होता है. तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 ग्राम गोल्ड है, यानी 1 यूनिट तो आपको खरीदनी होती है. अगर मैं इसको रुपीस में डिनोमिनेट करूं तो आज की डेट में अगर गोल्ड का प्राइस हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि 5200 रुपए के आसपास, 52,000 रुपए पर 10 ग्राम्स चल रहा है, तो 1 ग्राम हो गया 5200 रुपए का, तो यानी 50 to 100 1 यूनिट का वैल्यू हो गया. तो 1 यूनिट आपको मिनिमम लेना पड़ता है, उससे नीचे पॉसिबल ही नहीं है. तो दैट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट दैट यू नीड टू मेक. मैक्सिमम की बात करें तो एक इंडिविजुअल या HUF 4 किलो तक ले सकता है. 4 किलो का मतलब हो गया 4000 यूनिट. अगर रुपीस में डिनोमिनेट करें तो 2 करोड़. In one tranche. In one tranche. And if the same person is an individual also in HUF also, तो उसको डबल हो जाएगा. डबल हो जाएगा. और क्या कहते हैं, वो दोनों अलग अलग पैन कार्ड. सो दिस इज बेसिकली बॉट ऑन द पैन कार्ड. सो अगर HUF का पैन कार्ड और इंडिविजुअल का पैन कार्ड अलग है तो दोनों के लिए एप्लीकेबल. Okay. Now what are the redemption guidelines around this? मैं इसको आज मैंने ले लिया, तो क्या is there a minimum holding period, maximum holding period? When can I redeem? What are the restrictions around redemption? Broadly मतलब अगर ये 3-4 सवाल एक साथ आप बताएं. मैं कोशिश करता हूँ. सबसे पहले रिडेम्पशन से पहले में समझना पड़ेगा कि इसे खरीदा कैसे जाता है. तो इसे खरीदने के दोनों ही तरीके, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी.
तो पहले ऑनलाइन तरीके को समझते हैं। ऑनलाइन तरीके में आप जो भी बाइंग करते हैं इन बॉन्ड्स की, और जो बॉन्ड्स आपको इशू होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, सॉफ्ट कॉपी में होते हैं, आपके पास कोई फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं होगा, जो होगा वो आपके पास ऑनलाइन होगा सॉफ्ट कॉपी में। इसमें ऑनलाइन में ही एक दूसरा तरीका है जिसमें आप अपने डीमैट अकाउंट को यूज करते हैं और अपने डीमैटेरियलाइज फॉर्म में भी इन बॉन्ड्स को रख सकते हैं। तो आप पहले समझते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन खरीदा है और डीमैट में रखा है तो आपके लिए कोई लॉक इन नहीं है, आप जब चाहे उसको बेच सकते हैं अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में बायर मिल रहा है। मान लीजिए आपने आज इन्वेस्ट किया है और अपने डीमैट में उसको रख के डीमैटेरियलाइज फॉर्म में रखा हुआ है, और आप चाहते हैं कि 6 महीने बाद बेचना है, तो आप बेच सकते हैं। एवर्स के सामने बायर होना चाहिए उसको खरीदने के लिए। अगर आपने ऑनलाइन किया है बट आपने डीमैट नहीं कराया है, उसे डीमैट की डिटेल्स नहीं दी है और डीमैटेरियलाइज फॉर्म में नहीं किया, तो आपको 5 साल रुकना पड़ेगा। 5 साल के बाद आरबीआई अपनी विंडो ओपन करती है। जब भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट होगा, इंटरेस्ट पेमेंट के टाइम पे आप ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मैं अपने ये बॉन्ड्स वापस करना चाहता हूँ और मुझे मेरा पैसा वापस कर दिया जाए। सिमिलरली यही जो मैंने आपको दूसरा भी तरीका बताया रिजर्वेशन का, ये एप्लीकेबल होता है ऑफलाइन में भी। ऑफलाइन में भी अगर आपने बॉन्ड्स खरीदे हैं तो आप वापस जा सकते हैं इंटरेस्ट पेमेंट के टाइम पे। साल में 2 बार इंटरेस्ट पे होता है हाफ ईयरली बेसिस पे, तो जब वो इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है तब आप ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि 5 साल के बाद मेरा ये बॉन्ड मुझसे वापस ले लीजिए और मेरे जो कैश है मुझे, मेरा अमाउंट जो है वो मुझे क्रेडिट कर दीजिए। सो बेसिकली रिडेम्पशन का एक फर्स्ट फैक्टर डिपेंड करता है कि आपने किस फॉर्मेट से उसको खरीदा है। जी अगर मैंने डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदा है तो मैं इसको ओपन मार्केट में, डिपेंडिंग कि मुझे आज बायर मिलता है एंड इफ आई एम ओके विद दैट प्राइस आई कैन सेल इट व्हेनेवर आई राइट डिजायर। राइट बट इफ इट इज नॉट दैट मोड देन देयर इज अ 5 years लॉक इन लॉक इन। राइट 5 साल का लॉक इन है। उसके बाद रिडेम्पशन इज इट अगेन थ्रू आरबीआई और कैन आई सेल इट इन द ओपन मार्केट आल्सो? अगर आपका फिजिकल फॉर्म में है तो आपको ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शन होगी आरबीआई के थ्रू, बट आपको अपने बैंक को या अपने इंटरमीडिएटरी को अप्रोच करना पड़ेगा ये ट्रांजैक्शन कराने के लिए। तो आप खुद जाके किसी को मैन टू मैन नहीं कर सकते। somehow the process has to be followed wherein I would return this back, and जैसे मैंने बताया इसका ड्यूरेशन फिक्स किया हुआ है। ऐसा नहीं कि आपके 100 साल के दौरान में आप किसी भी महीने किसी भी दिन जा सकते हैं। इनका जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है 2.5% का, जो ये हाफ ईयरली बेसिस पे करते हैं, तो तब ये विंडो ओपन होती है जब इंटरेस्ट क्रेडिट होना है, उस दौरान में आप ये अपना बॉन्ड वापस करके अपने अमाउंट को अपने बैंक में क्रेडिट करा सकते हैं। तो साल में 2 बार ही विंडो मिलेगा ये आपको, 5वें साल के बाद, 6ठे साल से। ओके। सो मैं 5 साल के बाद भी 6th year ऑनवर्ड 5.5 साल, 6 साल, 6.5 साल, 7 साल ऐसे उन जी जब इंटरेस्ट पेमेंट का टाइम आता है तभी उसको रिडीम कर सकते रिडीम कर सकते हैं, हाँ जी। बट आई एम अज्यूमिंग दिस इज मॉर्गेजेबल सिक्योरिटी। अगर मैं रिडीम नहीं भी कर सकता तो इसको प्लेज करके इसके अगेंस्ट में कैपिटल रेज कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, सिंस ये सॉवरेन बॉन्ड्स है और गवर्नमेंट की गारंटी है, तो आप इसको कभी कहीं कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ प्लेज करके इसके अगेंस्ट में लोन वगैरह अवेल कर सकते हैं। Okay. Now, although we all, I mean, Indians have a huge preference for gold, especially physical gold. जी How would you say that SGB for investors, not for users? Obviously, जिनको ornaments अपने खरीदने के लिए या पहनने के लिए खरीदना है वो एक अलग बात है। जी बट इन्वेस्टर अगर गोल्ड को एज अ पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहते हैं, जी देन वन, इज SGB बेटर? पहला तो ये, क्या ये सच में बेटर है? जी टू, if it is better then why it is better? What are those reasons because of which it is better than physical gold? देखिए, बेटर तो है, ऑब्वियसली बहुत सारे पॉइंट्स है जो इसके फेवर में जाते हैं, एक दो चीजें नेगेटिव में भी जाती है, तो पहले जो नेगेटिव है वो समझ लेते हैं। तो पहला नेगेटिव तो ये है कि कहीं ना कहीं लिक्विडिटी नहीं है। तो आपको अगर मान लीजिए आपने ऑनलाइन खरीदा है या ऑफलाइन खरीदा है और आपको पैसे की जरूरत पहले पड़ जाती है 5 साल से, तो आपको निकालने में, मतलब उसको सेल करने में, उसको लिक्विडेट करने में बहुत चैलेंजेस आएंगे। तो आप एकदम से उसको रिडीम करके कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल है जिनका टाइम होराइजन थोड़ा लंबा है, जो ये सोच के चल रहे हैं कि मुझे कम से कम 5-7 साल के लिए मुझे गोल्ड के में एक्सपोजर लेना है और मैं इतने साल होल्ड कर सकता हूँ, उनके लिए सबसे सुटेबल है। दूसरा नेगेटिव ये है कि आपको जो एक वो सुकून मिलता है ना, एक फिजिकल गोल्ड को अपने हाथ में पकड़ के या अपने पास अपने लॉकर में रख के कि हाँ मेरे पास ये फिजिकल है और मेरे पास इतने तोले सोना है, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब कुछ या तो डीमैट फॉर्म में होगा, नहीं तो आपके सॉफ्ट कॉपी इन द पेपर फॉर्म में होगा, तो आपको वो सुकून नहीं मिलेगा।
अगर आप ये दो चीजें नहीं, ये इनको नहीं देख रहे और आपका ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से करना है और मैं चाहता हूँ कि मेरा रिटर्न मैक्सिमाइज हो गोल्ड में इन्वेस्ट करके, तो ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि यही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप इसको कंपेयर करें गोल्ड ईटीएफ से, चाहे आप इसे कंपेयर करें फिजिकल गोल्ड से, ये आपको 2.5% हर साल गारंटेड इंटरेस्ट देता है ओवर एंड अबव दी गोल्ड का प्राइस। तो गोल्ड में जो भी एप्रिसिएशन होगा लॉन्ग टर्म में वो तो अलग है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में सरकार आपको 2.5% का इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगी, जो कि ओवर एंड अबव है। तो ये एडिशनल रिटर्न है। तो मान लीजिए अगर अगले 10 साल में या 8 साल में गोल्ड आपको 9% का रिटर्न देता है, तो आपका रिटर्न बढ़ के 11.5% हो जाता है, क्योंकि 2.5% आपको इंटरेस्ट पे मिल रहा है। तो एक ये बहुत एडवांटेज है। दूसरा, अगर मान लीजिए आप इसको पूरी मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, तो जो कि 8 साल की है, 8 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली मेच्योर हो जाएगा और आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है, आपके लिए जो भी प्रोसीड्स आ रही है, जो आपका फाइनल अमाउंट आ रहा है, वो टैक्स फ्री आएगा, जो कि फिजिकल गोल्ड में और ईटीएफ में नहीं है। आप जब भी उसको बेचेंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म में बेचे या लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म तो इसके लिए भी सेम है, बट लॉन्ग टर्म में जब अगर आप बेचेंगे तो वहां पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा टू द ट्यून ऑफ 20%। तो वो आपका बचत हो जाती है यहाँ पे। उसके अलावा सेफ्टी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, प्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, वो यहाँ पे आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। सिंस अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट गोल्ड है और वो 999 प्योरिटी वाला है, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि जो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसकी प्योरिटी कैसी है, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा, मतलब गोल्ड नहीं मिलेगा बट उसका अंडरलाइन वही रहेगा। सेफ्टी आपको कहीं इसको छुपा के रखने की जरूरत नहीं है, किसी लॉकर में रखने की जरूरत नहीं है। पेपर फॉर्म में खो गया तो भी आरबीआई के पास आपके रिकॉर्ड रहेंगे, आप उसमें से अपने इनको वापस से रिकवर कर सकते हैं। तो काफी सारे पॉजिटिव्स हैं, एक दो नेगेटिव्स भी है, बट अगर मैं ओवरऑल इसको एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट इवैल्यूएट करूँ तो फेवरेबल ज्यादा है। और ये छोटे मोटे डिसएडवांटेजेस तो ऑब्वियसली हर इन्वेस्टमेंट के साथ होते हैं, जो कि हमें कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने पड़ेंगे उसके एडवांटेजेस को देखते हुए। ओके, अंडरस्टूड। सो मैं इसी से रिलेटेड एक आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जी then recommend this to your investors as a part of their overall portfolio design, and if yes, then what percentage of my portfolio should be held as gold investments and further as उसी मतलब gold and SGB को मैं यहाँ पर interchangeable कर, जी ऐसा मैंने जैसा पहले क्वालिफाई कर दिया कि जो मुझे पहनने के लिए ऑर्नामेंट गोल्ड चाहिए वो नहीं। अगर जी मैं अपना लेट्स से मैं आज 50 लाख रुपए का अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहा हूँ, तो उसमें से कितना परसेंट मुझे एसजीपी में डालना चाहिए और क्यों डालना चाहिए? व्हाट आर द रीजंस एज टू व्हाई आई शुड एट ऑल कंसिडर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड? देखिए, गोल्ड हमेशा से ही पोर्टफोलियोज का पार्ट रहा है हमारे क्लाइंट्स का, और रिकमेंडेशन का भी पार्ट रहा है। उसके मेनली रीजंस जो है, वो पहला है कि एक तो एसेट एलोकेशन के पर्पज से गोल्ड को होना जरूरी है। तो अगर आप अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं और आपको लगता है कि आप इसको डाइवर्सिफाई करके चलना चाहते हैं, तो इक्विटी डेट के अलावा गोल्ड कमोडिटीज में गोल्ड इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज। तो गोल्ड होना बहुत जरूरी है। ये भी देखा गया है कि जब भी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो गोल्ड हैज बीन अ सेफ हेवन फॉर इन्वेस्टर्स। तो जिन लोगों ने गोल्ड में एक्सपोजर लेके रखा है और ऐसे दौरान में मार्केट चला जाता है जहां बहुत वॉलेटाइल हो जाता है, अच्छा खासा करेक्शन आ जाता है, तो गोल्ड ने कहीं ना कहीं उन पोर्टफोलियोज को प्रोटेक्ट किया है। और ये मैं आपको नंबर्स के साथ भी शो कर सकता हूँ। एक दो इंसिडेंट्स को अगर छोड़ दे तो हमेशा ऐसा रहा है कि मार्केट ने अगर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी या करेक्शन दिखाई है, तो गोल्ड ने सेविंग हेवन का काम करते हुए आपके पोर्टफोलियोज को वो शॉक ऑब्जर्विंग पावर दी है, जिसमें कि आपका पोर्टफोलियो उतना ब्लीड नहीं किया जितना कि अगर वो सिर्फ इक्विटी बेस्ड होता है तो वो करता है। तो जनरली कहा यह जाता है कि अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो का 10 to 20% आपको गोल्ड में एक्सपोजर लेना चाहिए, जिससे कि अगर कभी ऐसा दौर आता है जहां इक्विटी अंडर परफॉर्म कर रहा है या कुछ नोशन ऑफ फियर रन कर रहा है मार्केट के अंदर, जैसा कोविड के टाइम पे हुआ फिर 2 साल पहले, उस दौरान में गोल्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए और पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं हेज करते हुए आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को प्रोटेक्ट किया। मैं 2 मिनट लेके आपको एक कंपैरेटिव शेयर करना चाहूंगा कि जब मार्केट कहीं ना कहीं वॉलेटाइल फेज में या करेक्शन फेज में जाता है तो गोल्ड ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। एंड इनफैक्ट दिस वुड हेल्प ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि गोल्ड का होना कितना जरूरी है पोर्टफोलियोज में। श्योर।
ये मैंने डेटा पिछले 41 साल का निकाला है, 1981 से लेके आज तक की डेटा 2022 तक का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ईयर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1981। 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 1981 से स्टार्ट करके, एंड आई अज्यूम्ड कि हम लोग सिंस 1981 से ले रहे हैं, तो 1981 में हमारा रिटर्न जो पहले साल था वो 0 होगा। सो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड से हमने कैलकुलेशन करनी शुरू की है। तो पिछले 41 साल में जैसे कि आप देखेंगे, मतलब विद ऑल प्लसेस एंड माइनसेस, 41 ईयर्स का जो एवरेज रिटर्न रहा है वो 9.6% रहा है गोल्ड के लिए। वही सेंसेक्स ने 16% रिटर्न दिया है लास्ट 41 ईयर्स में। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करने वाली ये है, जैसे अगर आप देखेंगे 1987 में मार्केट 16% गिरा था, बट गोल्ड ने 20% का रिटर्न दिया था। अगले साल भी 21% का रिटर्न गोल्ड में रहा था, बट मार्केट ने रिकवर किया, 51% रिटर्न दिया। तो यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जिन लोगों ने इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स करके पोर्टफोलियो बनाया था, उनको पहले तो ये -16% का इम्पैक्ट कम हुआ होगा। दूसरा, जब मार्केट रिकवरी थी तो उनके गोल्ड ने भी रिटर्न दिया और इक्विटी ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो वो कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियोज को ज्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाए। अदरवाइज होता ही है कि अगर आप सिर्फ इक्विटी बेस्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं और एसेट एलोकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो जब आप ये 16% का नेगेटिव देखते हैं, तो आप क्या करते हैं कि अपने पैसे को तब निकाल लेते हैं पोर्टफोलियो से, क्योंकि आपको डर लगने लग जाता है कि कहीं ये 16 से और ज्यादा तो नहीं गिर जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पैसा बिल्कुल ही जीरो ना हो जाए। बट अगर आप इस तरीके का मिक्स बना के चलेंगे जिसमें इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड भी है, तो आप कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा लंबा सस्टेन कराएंगे। और ऐसा हमने कई बार ही देखा है हिस्ट्री में। 1995 में 21% मार्केट गिरा, बट जिनका पोर्टफोलियो गोल्ड में भी था उनको सिर्फ 1% का, उनको पॉजिटिव में रहा उनका पोर्टफोलियो। मतलब ओवरऑल उतना ज्यादा डिक्लाइन नहीं दिखा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा। ऐसा 2001 से लेके 2002 के बीच में भी दिखा, जहां मार्केट 21%, 18% और 4% गिरा। वहीं कहीं ना कहीं गोल्ड जहां पे एक्सपोजर था उनका, वो इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं हुआ इस मार्केट फॉल का। अभी दो बड़े इंसिडेंट्स देखे जो कि 2008 में सब प्राइम हुआ था यूएस के अंदर, वो अगर हम टाइमलाइन को चेक करें तो 2008 में 52% मार्केट गिरा, गोल्ड ने 15% का रिटर्न दिया। तो जिससे बहुत क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि अगर इक्विटी, गोल्ड का और डेट का मिक्स करके पोर्टफोलियो एलोकेशन लेके चल रहे और उसको हम लोग टाइम टू टाइम रिव्यू और रियलाइन करते रहे, तो पोर्टफोलियो हमारा ज्यादा स्ट्रांग बनता है, ज्यादा दिन सिर्फ इस लालच में कि हाँ इक्विटी ज्यादा रिटर्न देगा तो सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो कहीं ना कहीं मिसफायर कर सकता है आगे आने वाले टाइम में। लेटेस्ट वाला इवेंट देखते हैं 2019-20 में, तो 2020 में मार्केट गिरा बट रिकवरी हो गई थी, तो 16% का रिटर्न दे दिया था। बट उसके बावजूद भी गोल्ड ने इसको आउट परफॉर्म किया इक्विटी को, 38% का रिटर्न दिया हमें 2020 में। आप कहीं ना कहीं गोल्ड थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गया है, इक्विटी अच्छा रिटर्न दे रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गोल्ड को एग्जिट कर ले और सारा पैसा वापस इक्विटी में डाल ले। तो अगर आप 10-15% का एक्सपोजर बना के चलते हैं, 10 से 20% का, तो लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट ही मिलता है मार्केट करेक्शंस के और क्रैशेस के टाइम पे। तो जो मुझे समझ आया जितेंद्र, वो ये है जी कि गोल्ड इज काइंड ऑफ गिविंग विद स्टेबिलिटी, बिकॉज उसका एक रेगुलर रिटर्न आता है। जी और खासकर जब मार्केट में कोई पैनिक इवेंट हो, जी। चाहे फिर वो पैनिक इवेंट सब प्राइम क्राइसिस हो, चाहे 2000 का Y2K क्राइसिस हो, हाँ और जी। चाहे वो कोविड हो, या अभी जिस तरह के रिसेशन की बात हो रही है, हाँ जी। उस वक्त में गोल्ड गोल्ड क्योंकि वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करता है, लोगों को उस पर भरोसा होता है, तो उस वक्त गोल्ड के रिटर्न्स आपको ज्यादा होते हैं, जिससे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो या तो रेड में नहीं जाता है, या रेड में जाता भी है तो लॉसेस इतने नहीं दिखते कि मैं घबरा करके अपने पोर्टफोलियो को ही डाइल्यूट जी करना शुरू। जी बिल्कुल। So it kind of acts as a guard against taking panic decisions. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यस। So your recommendation would be that to balance out my portfolio, and especially if I'm looking at a long-term 20-30 years kind of a horizon for developing an asset for my various financial goals, जी तो gold का उसमें 10% का inclusion will stabilize my fluctuations and will keep me invested and also help me maintain my calm and emotional राइट balance. राइट। ओके। और आपने जो हिस्टोरिकल डेटा दिखाया इसमें कहीं ना कहीं लगभग 9% का रिटर्न गोल्ड ने ओवर अ लॉन्ग पीरियड एवरेज दिया है। जी उसमें अब मैं अगर 2.5% का आरबीआई का वो ऐड कर देता हूँ, तो जी देन इट्स अराउंड 11.5% का रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म पीरियड, जी जी जी। सो विच इज नॉट अ बैड रिटर्न। और वो भी एब्सोल्युटली हर 8 साल के रिडम्पशन पर इट्स
free of any capital gain tax. Right. Sounds good. Or rather, two questions, Okay. not just the last question. हमें ये तो आइडिया लग गया कि 9% के आसपास का इससे हमको रिटर्न मिल सकता है, सब कुछ है. What is the way by which I can, मतलब अपने पोर्टफोलियो को जी. जब बिल्ड कर रहे होंगे तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमेशा मैं एक साथ ही लमसम इन्वेस्ट कर पाऊँ. क्या ऐसा भी हो सकता है कि इफ आई एम कमिंग टू यू एज अ क्लाइंट एंड मैं आपके साथ में एक प्लानिंग कर रहा हूँ कि ठीक है जी, मैं हर महीना 10,000 पे इक्विटी में डालूंगा या समथिंग जी. 15,000 रुपए का SIP करूंगा, देन कैन वी ऑल्सो हैव अ प्रोविजन कि जब भी कोई बीच में SGB का ट्रांचे इशू होता है तो मैं उसको अप्लाई करके एंड आई एम एबल टू include that in my जी. investments. Do you help your clients do that or See, how does it work? क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि SGB मिलता भी नहीं है बहुत बार अप्लाई करने पर. One doesn't हाँ, even ओवर get it. सब्सक्रिप्शन कई बार ही होता है. तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने टाइमली इस पे एप्लीकेशन नहीं डाला है, सो इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. सो जिनका एप्लीकेशन पहले आएगा उनको अलॉटमेंट पहले मिलेगा. इसमें कोई प्रोपोर्शनेट वाला नहीं चलता है जैसा शेयर्स में होता है कि सबको ही अलॉटमेंट मिलने देने की कोशिश की जाती है प्रोपोर्शनेटली. इसमें जिसका पहले एप्लीकेशन आएगा उसको पहले यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे. तो कोशिश तो ये की जाती है कि जल्दी से जल्दी, मतलब जिस दिन ट्रेंच ओपन हो रहा है, जनरली ये जो ओपन डेट होती है और उनकी क्लोज डेट में 3 दिन होता है. तो 3 दिन के लिए ये ओपन होते हैं. तो हम कोशिश करते हैं कि पहले दिन ही जितनी ज्यादा एप्लीकेशन अपने क्लाइंट्स की लगा सकते हैं उतना लगा दें, जिससे कि बिडिंग में हमारा नाम आ जाए और हमारे को जितने यूनिट चाहिए वो हमें मिल जाए. और कोशिश हमारी कामयाब भी होती है. एक आध दो केसेस में ही ऐसा हुआ है जहाँ की अलॉटमेंट नहीं मिली है. तो जहां तक आपकी बात है कि अगर मंथली एलोकेशन करना चाहते हैं इसमें, तो उसका तरीका यही है कि आप अपना इक्विटी का सिप अलग चलाइए, साथ में जो इसके लिए आपने एलोकेशन रखना है उसका डेट का SIP चला दीजिए. और जब जब ट्रेंचेस आए तो जितना अमाउंट आपका डेट फंड में एक्यूमुलेट हो चुका है उतने अमाउंट का आप सब्सक्रिप्शन के लिए, अलॉटमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. मिल जाता है तो अच्छी बात है. अगर इन केस किसी भी वजह से कि ओवर सब्सक्राइब हो गया है, नहीं मिला है, तो मे बी वी कैन ट्राई नेक्स्ट टाइम. बट तरीका यही है, जब जब भी मिले. और इनफैक्ट सजेशन भी ये रहता है कि आप इसको एक प्राइस पे ना खरीदें, थोड़े थोड़े ट्रेंचेस में अलग अलग टाइम पे सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो बेनिफिट आपको इक्विटी में मिलता है SIP करके, वही बेनिफिट आपको इसमें भी मिले और आपका प्राइस कहीं ना कहीं एवरेज आउट हो जाए. तो आप ज्यादा महंगा भी ना खरीदें. आप बिल्कुल कोशिश करें कि बीच में कहीं अगर आपका प्राइस आपको एवरेज होके मिल जाए तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है उस चीज का भी. तो पॉसिबल है, हम लोग करते हैं. डेट में अमाउंट एक्यूमुलेट करके अगर लमसम नहीं है तो उसको हम लोग आगे सब्सक्रिप्शन के लिए यूज कर देते हैं. But you do include this as a part of your financial planning for your clients. Yes, we do. Yes, we do. In fact, for many of our clients, we have replaced gold ETFs with this SGB. तो जो इसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 2.5% का, उसने इसको कहीं ना कहीं रिप्लेसेबल बना दिया है. तो पहले हम लोग जब तक इसमें एलोकेशन ज्यादा नहीं ले रहे थे, आज से 3-4 साल पहले, तब तक गोल्ड ETFs को ज्यादा यूज करते थे फॉर एसेट एलोकेशन इन दी गोल्ड. बट अब जैसे जैसे एक कन्वीनियंस भी आ गया, कंफर्ट भी आ गया इस एसेट क्लास के साथ, तो अब हम SGB की तरफ ज्यादा एलोकेशन देना शुरू कर दिया है. गोल्ड ETF कंपैरेटिवली कम हो गया क्योंकि वहां पे आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है. यहाँ पे आपका आप ये मान के चलिए, सिंस आपकी कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया वो सारा का सारा इसमें इन्वेस्ट हो जाता है. बहुत छोटा सा ही एक्सपेंस रेशियो है इसके अंदर. वहां पे आपका ऑलमोस्ट 1% से 1.5% तक भी चला जाता है. तो उसको भी बचा लेते हैं. और साथ में ये 2.5% का जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है गारंटेड गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी हमारे रिटर्न को थोड़ा सा बढ़ा देता है. तो हमारे फेवर में काम करता है. तो पोर्टफोलियोज में इसको बहुत एग्रेसिवली और लॉजिकली इसको यूज किया जाता है एज एन एसेट क्लास. Awesome. Thank you for that. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down.